Okay. Today's theme is the two sacrifice in Bible, Cain and Abel's two offering in the Bible. आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैक्रिफाइस त्याग के बारे में, पवित्र त्याग के बारे में, उसके बारे में हम सीखेंगे. The Bible consists of 66 books. जो हमारा बाइबल है वो 66 पुस्तकों से, अलग-अलग पुस्तकों से मिलकर एक बाइबल बना है. The first book in the Bible is Genesis. जो हमारा बाइबल को जो सबसे पहला जो पुस्तक है वो है उत्पत्ति. The last book of the Bible is the Revelation by John. और जो अंतिम है इस बाइबल का जो अंतिम पुस्तक है वो प्रकाशित वाक्य है यूहन्ना के द्वारा. The first two chapters of first book Genesis जो हमारा उत्पत्ति का जो सबसे दूसरा जो 2 अध्याय है, there appear the paradise, first paradise in Genesis 2 chapter. और वहां पे स्वर्ग के बारे में दिखाया गया है उस 2 अध्यायों में. In last book of Bible, in the Revelation, 2 chapters backward, there reappeared the paradise. और जो हमारा जो बाइबल का जो लास्ट वाला जो बुक है प्रकाशित वाक्य, उसमें भी स्वर्ग दिखाया गया है. First paradise is lost paradise. जो पहला स्वर्ग है वो खत्म हुआ वाला स्वर्ग है. And the second paradise is the recovered paradise in heaven. और जो अंतिम वाला जो स्वर्ग है वो फिर से रिस्टोर किया जाने वाला स्वर्ग है. Some says the lost paradise is hid in Himalayan mountains, among the Himalayan mountains. कुछ कहते हैं कि जो पहला जो स्वर्ग है वो माउंट हिमालयों के ऊपर है, ऐसा सोचते हैं लोग. But nobody found the hidden paradise in Himalayas. पर कोई भी उस खोए हुए स्वर्ग को नहीं पाया हिमालय पर. Some says the Bhutan, the nation, the country Bhutan is the lost paradise. कुछ लोग का मानना है कि जो भूटान है वो खोया हुआ स्वर्ग है. But the Bhutan, the country Bhutan is not the paradise, the lost paradise. पर भूटान जो खोया हुआ स्वर्ग है वो भूटान नहीं है. The lost paradise is not here anymore in this world. और जो खोया हुआ स्वर्ग है वो इस पृथ्वी पे पाया जाता है. But the paradise was in this earth in the first historic time. और जो खोया हुआ स्वर्ग है वो पृथ्वी पे था जब पहली बार जब सृष्टि की रचना हुई थी. तो But in the last part of the Bible of this world, there will appear the second paradise, the recovered paradise on this world, earth. और इस पृथ्वी के खत्म होने के बाद जो दूसरा स्वर्ग है वो वहां पे होगा, वहां पे दिखाई देगा इस पृथ्वी पर. This is first
paradise and the lost paradise. It was in this history. और ये इतिहास का ये पहला स्वर्ग है और ये खोया हुआ. But we lost the first paradise. But हम जो पहला स्वर्ग था उसको हमने खो दिया. And this is the second paradise, the recovered paradise by Jesus. और ये जो है दूसरा स्वर्ग है जो प्रभु यीशु के द्वारा बनाया गया है. Jesus came to the earth to lead us to the recovered paradise. प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए और हमें अगुवाई करने के लिए उस स्वर्ग के लिए. The third chapter in Genesis, the first book of the Bible, there appears the serpent and the falling of human being. और उत्पत्ति का जो तीसरा अध्याय है उसमें हम देखते हैं एक सांप को कि मनुष्य किस तरह से पाप में गिरा. The serpent enticed the human being, Adam and Eve, by lying. और जो सर्प था वो आदम और ईव को झूठ बोलने के द्वारा पाप में गिरा दिया. By eating the fruit of the tree of knowledge, the human being lost the right on the paradise. और वो जो ज्ञान का जो फल था उसको खाने के वजह से वो उस स्वर्ग को खो दिया उन्होंने. And the third chapter of Revelation, the last book of the Bible, third chapter backward, there appears the serpent, that is dragon. और हम फिर से जब उत्पत्ति का जो प्रकाशित वाक्य जो पुस्तक है जो तीसरे अध्याय में फिर से हम उस ड्रैगन को सर्प को देखते हैं. The dragon is judged and the dragon is caught by Jesus. और जो ड्रैगन है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कष्ट किया गया है. So the two chapters are related with each other. जो दो अध्याय हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. And chapter 4 in Genesis, the first book of the Bible, there appears two sacrifice. और उत्पत्ति के जो चौथा अध्याय है उसमें हम देखते हैं दो तरह का बलिदान को हम वहां पे देखते हैं. Okay. Okay, Genesis chapter 4, verse 1 to 8. उत्पत्ति अध्याय 4 1 से 2 तक. And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Verse 1. जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है. Verse 2. And she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया. हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना. Verse 3. And in process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord.
कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। Verse 4, and Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। Verse 5, but unto Cain and to his offering he had not respect. And okay. Verse 4, and Abel he also brought of the firstlings of the flock and of the fat thereof, and the Lord has respect unto Abel and to his offering. Verse 5, but unto Cain and to his offering he had a respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. वर्स 5, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। God respected Abel's offering, but Cain's offering God did not receive. परमेश्वर ने आबिल का जो ऑफरिंग्स था, जो चढ़ावा था, उसको ग्रहण किया, पर उसने कैन का नहीं किया। Why God did not receive Cain's offering? परमेश्वर ने कैन के चढ़ावे को क्यों नहीं ग्रहण किया? Okay, because Cain's offering is not the offering which God ordered to. जो कैन का जो चढ़ावा था वो नहीं था जो परमेश्वर चाहते थे। The sheep in Abel's offering is represent the only begotten Son of God, the Jesus Christ. जो हाबिल का जो चढ़ावा था वो प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर के इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। And it means the death on the cross of Jesus Christ. और वो उनसे उस क्रॉस पे मिलते हैं। अच्छा, जो आप लोग बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, अपनी माइक प्लीज आप कृपया म्यूट कर दीजिए। हरिंदर जी आपका भी माइक ऑन है, और ये धनंजय आपका भी माइक ऑन है ना। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग। Only by the sacrifice of Jesus we can be saved from our sins. हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के सिर्फ बलिदान के वजह से ही हम अपने पाप से बच सकते हैं। This is only sacrifice which can save our life. और ये है त्याग जिसके द्वारा हम अपना जीवन को बचा सकते हैं। So Abel's offering is the God appointed sacrifice. और जो आबेल का जो ऑफरिंग था, जो चढ़ावा था, परमेश्वर ने उसको अपॉइंट किया था। And it means the obedience to God. और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का मानना। Only by obedience to God we can be saved from our sins. हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा ही हम अपना जीवन बचा सकते हैं। By disobedience we fell into sin. और इस आज्ञाओं के वजह से ही हम पाप में गिर गए। By disobedience to God we cannot taste the heavenly paradise. और बिना परमेश्वर की आज्ञाओं को माने हम स्वर्ग का राज्य कभी चीख नहीं सकते हैं। The first chapter backward
in the Revelation chapter 19, जो हम प्रकाशित वाक्य जो अध्याय 19 है, there appear two feasts. वहां पे दो फीस्ट दिखाई देते हैं. First one is the feast of Lamb. और जो पहला है वो मेमने के जैसा है. The feast for the marriage of the Lamb. जो फीस्ट है वो मैरिज और लेम के शादी के बारे में है. Revelation 19 verse 7 to 9. हम प्रकाशित वाक्य का अध्याय 19 और 7 से 9 तक देखेंगे. Verse 7, let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. ओके, हम पढ़ेंगे 7वें को. Verse 7, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है. and verse 8, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है. Verse 9, and he saith unto me, write, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, these are the true sayings of God. तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं. फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं. In the second feast in this chapter is the feast of the birds, for the birds. जो हम दूसरा जो भोज है देखते हैं कि वो बर्ड्स के ऊपर है. Revelation 19 verse 17 to 18. प्रकाशित वाक्य 19 और हम देखते हैं 11 से Verse 17, and I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, come and gather yourselves together unto the supper of the great God. प्रकाशित वाक्य 19 से 17 का देखते हैं. फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा. उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ. 18 verse 18, that ye may eat the flesh of kings and the flesh of captains and the flesh of mighty men and the flesh of horses and of them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great. जिससे 18 का, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाओ. First feast is for the saved, for the people who are saved. और जो पहला भोज था वो बचाए हुए लोगों का था. For the righteous. पवित्र लोगों के लिए. The second feast, the feast for birds, is for the judgment of the sinners.
wickedness, wicked people. और जो दूसरा जो भोज है वो उनके लिए है जो पापी हैं, गुनहगार हैं, और उनके लिए वो न्याय के बारे में भोज था। By this Bible structure, the first sacrifice is related first supper, first feast in the Bible. और जो पहला जो भोज है वो जो सबसे पहला जो बाइबल का सबसे पहला भोज है उसको दर्शाता है, जो Abel's सफर है। Abel's offering is related the supper of lamb, marriage supper of lamb. जो आबेल का जो चढ़ावा था वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, उसके सेक्रीफाइस को। This is for those who are saved by the blood of the lamb. और ये उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से बचाए गए हैं। Second sacrifice, Cain's offering is related with the second feast, the feast for the birds in chapter 19 of Revelation. जो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का जो उसमें दिखाया गया है कि जो कैन का जो चढ़ावा था उन लोगों के लिए था जो दुष्ट थे, जो जिनके ऊपर जजमेंट होने वाला था। There are many religions in this world, so many religions in this world. अब हम यहाँ देखते हैं कि इस पृथ्वी पे बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारे चर्च हैं। But God sees only two kinds of religion in this world, in this universe. पर परमेश्वर सिर्फ दो समुदायों को देखता है, इस दो धर्म को देखता है इस पृथ्वी पर। Offering by obedience and offering by disobedience. जो वो त्याग जो एक आज्ञा मानने वालों की तरफ से था और एक वो जो आज्ञा तोड़ने वालों की तरफ से था। Abel's offering means the sacrifice by obedience. और जो आबेल का जो चढ़ावा था वो आज्ञा मानने के द्वारा था। Those who join to the sacrifice of Abel does not change the law. जो लोग एबल के सेक्रीफाइस को चढ़ावे को तरफ होते हैं वो कभी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं बदलते। They only obey to God's word as it is, not और change. वो सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं और उसको बदलते नहीं है। Okay, this is the sacrifice of obedience. और ये जो है जो चढ़ावा है वो आज्ञा मानने वालों की तरफ का है। Abel's offering means the salvation by God's grace. आबिल का जो चढ़ावा था उसका मतलब है कि उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। By God's sacrifice. परमेश्वर की त्याग के द्वारा है। Abel's sacrifice confessed that we human beings are nothing but dust before God. जो हाबिल का जो कन्फेशन जो उसका स्वीकार है कि हम मनुष्य कुछ भी नहीं है, हम परमेश्वर के सामने। We cannot do anything without God. हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं परमेश्वर के बिना। But we can do everything with God.
लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के साथ। This is Abel's sacrifice. और ये था आबेल का चढ़ावा। The Cain's sacrifice by the fruit of the field. और जो कैन का जो चढ़ावा था वो फील्ड के फ्रूट्स के द्वारा था। It means the sacrifice by disobedience. इसका मतलब ये था कि त्याग परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन के द्वारा। It glorifies their own sacrifice and their own merit. और वो लोग हैं जो अपने कामों पे और अपने त्याग पे खुश होते हैं। So there are only two kinds of religion in Bible. और इस तरह के कुछ धर्म हैं बाइबल में। God-centered religion and man-centered religion. और एक खुद पे एक परमेश्वर के ऊपर आधारित एक धर्म है और एक मनुष्य खुद उनके ऊपर आधारित एक धर्म है। Abel's sacrifice, Abel's offering is related with the supper of the marriage of lamb. और जो आबिल का जो त्याग था, जो चढ़ावा था, वो प्रभु यीशु मसीह के भोज के लिए था। The offering is related with the feast of judgment, the feast for the birds. और दूसरों का जो उनका था वो जजमेंट की तैयारी के लिए था। There are only two kinds of religion in this world. और यहाँ पे दो ही तरह के धर्म है इस पूरी पृथ्वी पर। There are 2 days which many people respect for the worship. यहाँ पे दो ही दिन है जिसके द्वारा जिसको लोग सम्मान करते हैं प्रभु की महिमा के लिए। First one, Sabbath worship, and the other one is a Sunday worship. पहला जो है वो सेवंथ डे मतलब 7वें दिन को और दूसरा जो है संडे को। Sunday worship is from God. जो 7वां दिन है वो परमेश्वर के द्वारा। Sabbath worship from God. Yes. Okay, sir. Already I translated. And Sabbath is the 7th day. It means Saturday. और जो 7वां है वो 7वें दिन का है जो परमेश्वर की महिमा के लिए है। But human-centered church changed the God's law from Saturday to Sunday. जो मनुष्यों के ऊपर आधारित है, जो धर्मोपदेश किए हुए हैं, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को चेंज कर बदल करके संडे को शुरू कर दिया। This change means the authority of the false church. और बदलाव का मतलब होता है खुद का बदला हुआ, खुद के अधिकारों पे वो चलाया जा रहा है। If we want to join to Abel's offering, we must obey God's word. हम जो आबेल के ऑफरिंग चढ़ावे पे बिलीव करते हैं, हमें आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए। The true worship day from Bible is the 7th day and Sabbath day. जो सत्य, जो परमेश्वर का सत्य का दिन है, जो वो साबत, वो 7वें दिन को है। And the day changed by Roman emperor is the
Sunday, and Sunday worship is of the Cain sacrifice. Excuse me. Okay. नारायण, श्याम नारायण जी, प्लीज म्यूट, आप अपना म्यूट करिए, बहुत नॉइज आ रही है. ओके सर, ओके. ओके, सो जो सब्बात का दिन था, जो सैटरडे का, वो संडे में चेंज कर दिया गया, वो रोमन एम्पायर के द्वारा, रोमियो साम्राज्य के द्वारा. Only by obedience to God we can be saved. हम परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा ही हम बचाए जा सकते हैं. God wants us to obey God's law. परमेश्वर हमसे चाहता कि हम उसके नियमों को माने. There are only two religions in this world. और ये संसार में हम देखते हैं कि सिर्फ दो ही धर्म है. Which religion do you want to join? आप कौन सा धर्म, आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं? Abel's or Cain's? आबेल का और या फिर कैन का? Okay. Two religion is related to feast. जो दो रास्ते हैं वो दो भोज को दिखाता है. Only true religion can lead you to the restored paradise of Jesus. आप जो ट्रू रास्ता है, जो सत्य रास्ता है, वो आपको उस स्वर्ग में पहुंचा सकता है. Jesus is our leader to the restored paradise. प्रभु यीशु हमारा एक अगुवा है जो हमें उस स्वर्ग के राज्य में लेके जाने वाला है. Only by Jesus, not by ourselves, we can come to the restored paradise. ओनली प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं, हम अपने द्वारा नहीं जा सकते हैं. This is my message of today. ये मेरा आज का सुसमाचार. Thank you, everyone. Thank you. Amen. Okay. Will you pray the closing prayer? Who will pray the closing prayer? So आइए हम क्लोजिंग प्रेयर Okay, करेंगे. okay, good. हाँ. हालेलुया. समर्थी ईश्वर, हमारे पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर और हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें बीते समय में संभाल कर रखा. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, दी हुई सांसों के लिए, पल के लिए, जिंदगी के लिए, दी हुई तमाम आशीषों के लिए और दिए हुए आज वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो तेरे पिता परमेश्वर दास ने ठहराया, आपका धन्यवाद करते हैं. पिता परमेश्वर, हम इसके योग्य नहीं है कि तेरे चरणों में बैठ के तेरी आराधना कर सके, तेरा पवित्र नाम अपने गंदे होठों पर ले सकें. पिता परमेश्वर, हमारे मन में बहुत सी गंदगी है. पिता परमेश्वर, आपका नाम बहुत पवित्र है, आपका नाम बहुत शुद्ध है, हम इसके योग्य नहीं हैं. प्रार्थना करते हैं जो भी आपका वचन आज हम सब में डिस्कस हुआ, आप लोगों को पिता कुछ शेयर किया है तो आप बोल सकते हैं. हम आपका धन्यवाद करते हैं. जो भी आपका आज वचन मिला हमको सैक्रिफाइस के लिए, कि हम परमेश्वर के वचनों पर चल सके, उसके ऊपर मनन कर सके,
और पिता परमेश्वर उनको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल कर सके। ये आपका एग्जाम्पल है पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है, जैसे मैं अपने पिता की आज्ञा मानता हूं, उसकी बातों को पूरा करता हूं, पिता परमेश्वर वैसे तुम भी मेरी सुनो और मेरी बातों को पूरा करो पिता परमेश्वर। तो मैं और पिता जो एक हैं, फिर आपके लिए स्वर्ग का राज्य होगा। सचमुच पिता परमेश्वर हम हाबिल की तरह हो सकें। पिता परमेश्वर आपके वचनों को मानने वाले। पिता परमेश्वर जैसे पौलुस बोलता है, पिता परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लिया। सचमुच हम भी आपके एक एक वर्सेस को, एक एक शब्द को पिता परमेश्वर हम अपने हृदय की पट्टियों पर लिख सकें। पिता परमेश्वर हम आपके वचन को अपने अंदर स्टोर कर सकें, ना कि बुरी बातों को, बुरी सोचों को पिता परमेश्वर, बल्कि आपके पवित्र वचनों को अपने मन में रख सकें। जब भी हम बात करें किसी से, पिता परमेश्वर हमारे अंदर से पिता परमेश्वर आपका वचन निकले। प्रार्थना करता हूं जितने भी जन इस मीटिंग के साथ जुड़े हैं, जो एक दूसरे से वचन साझा किया, पिता परमेश्वर हर एक को इस वचन का प्रतिफल जरूर देना पिता। जिसने भी मन से सुना, दिल से सुना, उनको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीष देना पिता परमेश्वर। वो एक अच्छे बीज की तरह हो सके जो अच्छी भूमि पर गिरा और पिता परमेश्वर उसने अपने आप को फलदार बनाया। तेरा धन्यवाद करते हैं। हम भी उसके समान हो जाए जिसने 5 तोड़े लिए और उसको पिता परमेश्वर और मेहनत की और 5 तोड़े और कमाए। सचमुच हम भी ऐसे हो जाएं, तेरे वचनों पर चलने वाले, तेरे वचनों को मानने वाले हो सकें। हमें पिता परमेश्वर इस वचन को और गहराई से समझने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान दो। जैसे तूने सलमान को दिया वैसे हमें भी देना। हमें वो ज्ञान देना जो स्वर्ग से मिलता है पिता परमेश्वर। हमें वो ब्लेसिंग दो जो तूने अब्राहम, इसहाक और याकूब को दी, वैसे हमें भी देना पिता परमेश्वर। जो भी आज के स्पीकर थे उनको बहुत सारी ब्लेसिंग देना, उनकी फैमिली को ब्लेसिंग देना, और जो भी आज के लीड करने वाले थे उनको बहुत सारी आशीष देना, उनकी फैमिली को बहुत सारी आशीष देना। और जो आज के पिता परमेश्वर तेरी आराधना करने वाले पर्सन थे उनको भी बहुत सारी आशीष देना, उनकी फैमिली को बहुत सारी आशीष देना। और जिन्होंने प्रार्थना की उनको भी बहुत सारी आशीष देना, उनकी फैमिलीज के लिए पिता परमेश्वर अपनी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर आशीषों के झरोखे खोल देना आसमान में से पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं अगर कोई इस मीटिंग में कोई भी किसी की परेशानी मुश्किल लेके बैठा है तो सारी यीशु के नाम से मैं विनती करता हूं परमेश्वर के आगे, सारी यीशु के नाम से रफा और दफा और दूर हो जाए पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गीय दूतों के पहरे लगा देना पिता परमेश्वर जो उनकी रक्षा कर सकें। हर एक की परेशानी मुश्किल को तू पिता परमेश्वर उसका सलूशन देने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन में लिखा जो भी आप विश्वास से प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये वचन हमारी जिंदगी में आमीन बनकर हो जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जो भी आज की आराधना हुई पिता परमेश्वर, बहुत पिता परमेश्वर अच्छे समय बिताया आपके वचनों में, आपके पिता परमेश्वर आराधना में, आपके पिता परमेश्वर आगे प्रार्थना की, और जो भी गीत भजन गाए गए आपको आसमान में पसंद हो। जो भी आज की प्रार्थना की गई उनको सुनना और उनका आंसर दे देना। जो भी आज का वचन हुआ वो हमारे दिल में
पिता परमेश्वर हमारे हृदय में बैठ जाए और आने वाले समय में हम उनको वो वचनों को जिंदगी में आगे रखकर अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सके। हमारी जिंदगी में बदलाव हो, हम सुनने वाले ना हो सके, मानने वाले ना हो सके, परंतु उन पर चलने वाले हो सके। तेरे वचन में लिखा है, जो वचन को सुनता है, पढ़ता है, पिता परमेश्वर अगर उनको मानता नहीं है, उस पर चलता नहीं है, वह अपने आप को धोखा देता है। हम धोखा देने वाले ना हो सके अपने आप को, परंतु उस वचन पर चल के इस जीवन को स्वर्ग राज्य के योग्य बनाने में हो सके, हम दुई मौत से बच सकें। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, दया और कृपया करना, जैसे तुमने बीते समय संभाला, नेक्स्ट समय में संभाल के रखना। तेरा धन्यवाद करते हैं, जो मांगा विश्वास से हमने पा लिया। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में से, पिता परमेश्वर से मांगते हैं, आमीन। Amen. आमेन आमेन।